Hello everyone. Again a very warm good morning. I'm back after so many days, right? So again a very warm welcome on the platform of Unacademy. Let's crack it. Today in this today's topic we are going to learn about the gametogenesis in the male. Okay. अभी तक मतलब हम हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, राइट? उसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया था up to the last week. Now in this week we are going to learn about the gametogenesis in male today, और कल हम पढ़ेंगे gametogenesis in female. So our today's topic is gametogenesis in male, which is a very short and interesting topic. Okay. First of all, I would like to give you my introduction because for many people I am new. For me also many people are new. So for them I am Divya Gupta. My graduation is that I have done the MSc in microbiology. I have around 3 years of teaching experience, not much more, okay? And I'm completely passionate about teaching so that I can teach you on a very great thing which I am knowing, and you people also can use that knowledge in a very great sense, because you have to make the India proud and you also have to make the Unacademy proud. Let's crack it. So my dear बच्चा पार्टी, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का स्टार्ट हो गया है वो है प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ये दोनों अलग अलग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन अभी न्यू फीचर में ऐड हुए हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले से थोड़ा सा उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, सो दैट यू कैन कम टू नो दैट क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं एंड हाउ वी हैव टू प्रोसीड, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक. तो पहले हम बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में कि व्हेन यू विल हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन, at that moment what you are going to get. First is that learn live from the comfort at your home. ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि you are at your home, even we are also at our comfort zone. So you have to stay at your comfort zone itself and you have to learn from the home itself. Okay, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है, you have to stay at your home. Another thing that you are having the unlimited access of all the courses. तो जितने भी courses अवेलेबल हैं, ठीक है, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं, अभी नए फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं. फॉर दैट यू आर हैविंग द अनलिमिटेड एक्सेस. इट मीन्स यू कैन गो थ्रू द वीडियो एज मैनी एज टाइम यू वांट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? क्योंकि अगर वी विल पुट सम रेस्ट्रिक्शंस टू लुक एट द वीडियो और फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स यू शुड लुक एट द वीडियो, तो फिर वो रेस्ट्रिक्शंस पढ़ने में it doesn't look good. Okay, so you are having the unlimited access for each and every course, for each and every video. Okay, then you are being prepared with the top educators of India. जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, तो सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. ठीक है, आप कोई भी बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट का टॉप एजुकेटर जो है, एक्सपीरियंस एजुकेटर, इफ़ यू विल try to find out them on this platform of Unacademy, you are definitely going to find them. Okay, so yes, you are being prepared from them. Okay, then you are having the exhaustive coverage of a syllabus. जितना भी syllabus है आपका, कोई भी कोर्स के लिए आप अगर बात कर रहे हो, तो वो सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको ऑन टाइम कंप्लीट कर दिया जाएगा और पूरा कवरेज होगा. कोई सिलेबस का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो पूछा आपको समझाया नहीं जाएगा. Then you will be having the regular doubt solving sessions that you are already having. ठीक है, you can ask your doubts and you can ask your queries when the educator is live. Even if she or he is not live, at that moment also the educator are keeping special doubt solving sessions for such type of students. Then you are having the live test series, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है ना, पढ़ने के साथ साथ हमें बहुत ही मतलब टेस्ट वगैरह देनी पड़ती है, हमें क्विज वगैरह देनी पड़ती है, सो दैट वी कैन एनालाइज अवर ओन परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे एनालाइज ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलती है लाइव टेस्ट, क्विज, मॉक टेस्ट, सो दैट यू कैन कम टू नो दैट ऑन विच पार्ट you are very, at the topmost level and on which part you need a much more practice. Okay, then you will be having the study material which is provided in the PDF form. So जो आपके lectures होते हैं, lectures के नीचे you will find the word download. ठीक है, तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, so you will find the notes which are being provided by the educators. Then answer writing sessions भी आपको मिलेंगे, and then mentorship and guidance. तो आपके जो educators है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के favorite educators भी है ना, काफ़ी सारे बच्चे जो इस एजुकेटर के फ़ैन हैं या
fan I will not use the word because education में fan is not at all the word which is comfortable over here. ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को है जो इसी एजुकेटर का ज़्यादा समझ में आता है या कुछ एजुकेटर्स के कम समझ में आता है, वॉट एवर इट मे बी. सो यू आर गेटिंग गाइडेड फ्रॉम दैम ऑल्सो. ठीक है, आप उनसे पढ़ने वाले हो, आपको उनसे गाइडेंस भी मिलने वाली है. सो यू विल फील वेरी वेरी कम्फर्ट जोन ओवर हियर. देन यू विल बी हैविंग दी, अगर मैं आपको बात करूं तो ये जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि डेली प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है आपको. ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट मिल रही है, न्यू लाइव सीरीज मिल रही है, लाइव क्विज की मिल रही है, एंड इवन अभी बताती हूँ आगे उसके बारे में क्या है. देन वी विल टॉक अबाउट द आइकॉनिक फीचर. तो आइकॉनिक फीचर की अगर मैं आपको बारे में बात करूँ, सो प्लस के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ऑल दी प्लस, जितने भी प्लस के जितने बेनिफिट्स हो वो तो सब आपको मिलेंगे. उसके अलावा कुछ मेन इम्पॉर्टेंट 5 फीचर्स है जो आपको सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे ही मिलेंगे. तो चलो उसके बारे में बात करते हैं. तो पहला है पर्सनल मेंटर. ठीक है, यू विल बी हैविंग अ 1-to-1 इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि दे कैन नॉट आस्क डाउट्स इन दी पब्लिक. ओके, so they need a personal attention. So you are in this iconic subscription, you will be having a personal attention and you will be having a one-to-one interaction with your educator. Okay, then you will be having live doubt solving sessions, right? वीकली रिपोर्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपने इस वीक में कितने क्लासेस हुए, कितने आपने क्लासेस अटेंड करे, कितने नहीं करे, व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस इन द क्विजेस, हाउ मच यू हैव परफॉर्म्ड वेल एज पर द लास्ट वीक एंड ऑन विच सब्जेक्ट यू हैव टू वर्क मोर. वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक वीकली रिपोर्ट में मिल जाएगी. ठीक है, देन यू योर पेरेंट्स एंड ऑल्सो कैन कनेक्ट विद अस बिकॉज दिस इज अ choice of each and every parent, because at the end your parents are only paying their fees for your subscription, right? So yes, the parents are also having the right to ask their doubts, to ask about their child, that how he or she is performing. So here on this iconic subscription, your parents also can connect with us. They can ask they can discuss the concerned child, and they can even work as a personal mentor over here. आयुष अग्रवाल, हेलो. देन यू विल बी हैविंग अ स्टडी प्लानर. ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा स्टडी प्लानर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट यू कैन कम टू नो कि भाई आपको इस मंथ में या इस वीक में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है. ठीक है, यू टीच वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस फॉर्म में पढ़ना है, तो पूरा पूरा आपको प्लानर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. द थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न विद दिस एजुकेटर. Then these are the different batches which are available for your क्लास 11th 12th एंड साइंस एंड कॉमर्स एंड इवन. तो बैचेस मतलब क्या होता है कि भाई जैसे स्कूल में होता है ना कि एक सब्जेक्ट टीचर, ये बायोलॉजी की टीचर है, ये फिजिक्स की टीचर है, ये मैथ्स के टीचर है, ये इस टाइम पे हमें टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाना आएंगे. द सेम वे यू आर गोइंग टू गेट द बैचेस ओवर हियर. The particular timetable is fixed that on this time you are going to learn this subject. You can see over here in this figure. Okay, तो आपके जो एजुकेटर्स वो आपके लिए फिक्स हो गए हैं. They have put a particular timetable in front of you. कितने मंथ का टाइम टेबल है, कब से स्टार्ट होगा, कब से एंड होगा. You will find each and every information on that thing. Okay, this was for the 12th science and the commerce. Okay, then NCERT batches भी अवेलेबल है. देन 12th के NCERT बैचेस भी है. देन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी में ही समझ में आता है. मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन प्रोसेस, और कुछ बच्चे ऐसे हैं हु अंडरस्टैंड द इंग्लिश ड्यूरिंग दैट अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस. सो फॉर सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग बैचेस प्रिपेयर कर दी गई है ताकि आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में पढ़ सको. ठीक है, these are the batches of humanities and yes, the important thing is the test series. ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है. you will be having the website of unacademy.com. ठीक है, unacademy.com, just type it on the Google and your login ID will be your mobile number. जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, that will be your login ID. So put that mobile number over there and you will have a OTP. Type that OTP as by doing so you will log in into your account. Then you have to click on the course top
लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगा कोर्स, ठीक है, CBSE क्लास 11th में हो या 12th में हो या और कोई क्लास में हो, एंड देन यू विल सी अ टेस्ट सीरीज विच इज there on the left corner. Okay, so by clicking on the test series you can come to know that which are tests are going to held and when they are going to held, और हो भी गई है तो you can go through them. Okay, in the same way for the 12th. Then yes, the creative corner, which is the most important feature that has been added in both the plus subscription, plus में भी है और आइकॉनिक में भी है, ठीक है, दोनों के अंदर आपको ये क्रिएटिव कॉर्नर वाला जो पार्ट है वो मिलेगा, जो अभी स्टार्ट हो गया है 17 और कल और परसों मतलब सैटरडे संडे को क्रिएटिव कॉर्नर है इस वीक का. सो यू कैन गो थ्रू इट. ओके, ओवर देयर यू विल बी हैविंग you will be learning some new techniques, new things, so that the interest about your studies can be maintained for the long period of time. Okay, over there you will be having the Vedic maths, dawdling, public speaking, you can origami, magic tricks you will learn, poetry, story telling, robotics, pneumatics and debating. मतलब इन सब के जितने भी experts हैं ना, you will find there on this platform. They will also have a class for 1 hour and you can learn some creative things, so that पढ़ाई के साथ साथ कुछ entertainment भी होता जाएगा, और जो पढ़ाई है उसको प्रैक्टिकली लाइफ में किस तरीके से उतारा जाता है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, फिर आपको जब आप यू विल लॉग इन इनटू योर अकाउंट, यू विल फाइंड 2 ऑप्शंस, दैट इज प्लस और द आइकॉनिक. प्लस करना है तो गेट प्लस वाला सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, आइकॉनिक हो तो आइकॉनिक पे क्लिक करना है. देन अगर मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर इन द 11th, ओके, सो यस यू शुड टेक दी सब्सक्रिप्शन फॉर द 24 मंथ, दैट इज 2 years, जिसके अंदर आपका क्लास 11 तो हो ही जाएगा, 12th भी हो जाएगा, एंड इवन आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी पढ़ने को मिलेगा. एंड इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन, सो फॉर द 24 months, दैट इज फॉर द 2 years, you have to pay rupees only 22,500. Okay, and for that you have to use the referral code, that is DG007. इसको हम referral code बोलते हैं, and this referral code belongs to me. As soon as you will use this referral code, that is DG007, DG that is Divya Gupta 007, so you will having a 10% discount. आपको ये वाला referral code यहाँ पे टाइप करना, छोटा सा आपको गिफ्ट जैसा दिखेगा. So you have to type this referral code over here, and by doing so you will having a 10% discount, so that for that you have to pay 10% less as compared to the given price. So it's a very great opportunity, my dear students, don't miss it. If you are in the if you are willing to take the iconic subscription, and yes, it is little bit costly, I know, but on the other hand this iconic subscription is also providing the great features also, which are not there on this plus subscription. तो iconic feature है तो साथ में आपको फायदा भी इतना ही मिल रहा है. Okay, so in the iconic subscription you are not having the 3-month package available, you are having 6, 12, 18 and 24 months. And suppose if you want to take 12-month subscription, so that will cost 25,200. okay, for 24 months, that is for the 2 years, if you are in the 11th, then it will cost 43,200 rupees. Yes, it's little bit costly, I do understand, but आपको सामने बच्चा पार्टी इतना फायदा मिल भी रहा है, so why are you losing the chance, why are you even आप एक दिन अपना क्यों वेस्ट कर रहे हो टू थिंक अबाउट इट. आज की आज जाओ और तुरंत की तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लो ऑफ दिस आइकॉनिक एंड दी प्लस सब्सक्रिप्शन. ओके, इफ़ यू आर इन द 12th एंड 12th में तो फिर 2 साल का लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, राइट. सो फॉर द प्लस यू हैव टू पे फॉर 12 months, इट इज़ जस्ट रुपीज़ 13,500 प्लस सब्सक्रिप्शन का, जिसके अंदर आपको 12th तो मिलेगा ही पढ़ने के लिए, साथ में यू विल लर्न अबाउट द क्रिएटिव कॉर्नर्स. ओके, ठीक है. फॉर दैट ऑल्सो, फॉर ईच एंड एवरी कोर्स, फॉर ईच एंड एवरी मंथ पैकेज, you can use this code, that is DG007, and have a 10% discount today. आज के आज 10% डिस्काउंट ले लो, और क्यों अपना दिन बर्बाद कर रहे हो भाई सोचने में, ठीक है. फिर बच्चा पार्टी 1 month का सब्सक्रिप्शन सब जगह से निकल चुका है, ठीक है. If you are willing to take the iconic subscription, in which your parents can connect with us, you can see your weekly report और बाकी सारे अपन ने जो great features देखे थे iconic के. So for the 12 months it will cost rupees 25,200, and for 6 months it will cost rupees 15,300. Okay, so now you are completely understand that how much it is going to be beneficial और कितना ये useful है Unacademy का सब्सक्रिप्शन. और इवन बच्चा पार्टी Unacademy ने इतना आप लोगों के लिए सोचा है ताकि each and every student of this India can have the subscription, because we don't want to lose our students, और बच्चे
पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर दैट दी अनअकैडमी हैव केप्ट अ वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट फॉर योर सब्सक्रिप्शन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट मिस दिस चांस, because at the end you are going to say that yes ma'am, आपने जो मैं suggest किया था to have the subscription, it was a really a great thing which we have got in our 11th and 12th. Okay, so this was all about the Unacademy's new feature that has been added recently. almost 1 week ही हुआ है. चलो, तो आज का हमारा जो प्रोसेस है, वो पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज गेमेटोजेनेसिस इन मेल. एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे मेल के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मेल. ठीक है, तो क्या क्या काम कर रहे थे, कौन कहाँ लोकेटेड थे, वो सब हमने देख लिया. अब हम देख रहे हैं कि भाई मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, कब होता है. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. एंड एट दी एंड और after learning the process of gametogenesis we are going to also have to learn about the structure of the sperm. मतलब sperm का उसका कौन कौन से parts है, वो कैसा दिखता है. ठीक है, that also we are going to learn in our today's session. So I hope you all are ready for our today's session and it's a very very easy. पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही easy process है, बहुत ही easy चीज़ है, but yes, it's a part of the genetics of the human, so it can come in your examinations. Right? चलो पढ़ते हैं हमारा आज का प्रोसेस, दैट इज गेमेटोजेनेसिस इन मेल. वी विल लर्न ईच एंड एवरी स्टेप वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली, सो दैट आपके दिमाग में एक एक जो स्टेप है वो एकदम क्लियर हो जाए एंड यू विल लर्न इन दिस वीडियो इटसेल्फ. वीडियो के बाद जाके आपको दूसरी बार टेक्स्ट बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग so thoroughly in my lecture. Okay, so let's start. Primary sex organs in the males are testes. You are completely knowing that because आपने मेरे पिछले videos देखे होंगे, right? So primary sex hormones in the organs in the male are the testes, you know. ठीक है, जो outside the body located था, because it was located in the scrotum. ठीक है, because it needs a little bit less temperature, around 3 to 5 डिग्री सेल्सियस उसको कम चाहिए था for the formation of sperm. It needs a little bit less temperature as compared to the body. That was the reason why the testes are located outside the body. Produces sperm by gametogenesis. So the thing which we are going to learn, that testes, how the testes are producing the sperm. Okay, for that the process is gametogenesis, and now we will see each and every step of gametogenesis, that how does it occur, what are the steps which are involved in that. Is that clear? Fine. Okay, so at puberty means what? Can you please let me know in the comment box कि puberty का मतलब क्या होता है. Puberty means the age of adolescence, or we can say the maturity phase. And it is around 13 to 15 years in boy, or we can say in the male child it is around 13 to 15 years, or it can even extend up to 16 to 17 years also. It depends upon the maturity level. कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे धीरे मैच्योर होते हैं. इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ प्यूबर्टी स्टेज, तो वो टीन एज वाली एज होती है कि एज सुन एज द चाइल्ड इज गेटिंग एंटर्ड इनटू द टीन एज पीरियड. Okay, at that moment he or she is getting matured, he or she is preparing for getting mature in its lifetime. ठीक है, तो प्यूबर्टी में क्या होता है, immature male germ cell called spermatogonia produces sperm by spermatogenesis. तो क्या होता है, जो germ cells होते हैं, ठीक है, germ cells जो होते हैं, that are going to prepare the sperm. वैन कब से स्टार्ट होगा ये प्रोसेस, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी जैसे ही बच्चा एंटर हो गया प्यूबर्टी वाले स्टेज में या मैच्योरिटी वाले फेज में, फ्रॉम दैट फेज इटसेल्फ द मेल चाइल्ड की जो जर्म सेल्स हैं टेस्टिस के अंदर, दैट जर्म सेल्स आर नाउ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स, एंड द प्रोसेस which is responsible for this sperm formation is spermatogenesis. Genesis means what? Formation. जैसे मैंने आपको बताया था कि wherever you will heard the word genesis, it means we are talking about the formation.
Spermato मतलब sperm formation. So the process of sperm formation is what the spermatogenesis. It starts at the puberty phase, in which what happens, the germ cell is getting converted into sperm. Getting converted मतलब तुरंत वो बड़ा होके वो sperm में convert हो गया, नहीं. There are steps which are involved for the formation of sperms. Is that clear? अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो ये तो वर्ड जो है या कम्प्लीटली फैमिलियर विद इट. आई थिंक अब मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स? ओके, इफ़ यू आर नॉट येट क्लियर, तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी. आपको मेरा एक होमवर्क करना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू दी वीडियो जो पिछली वीक का अराउंड थर्सडे फ्राइडे को था, अराउंड थर्सडे को था पिछले वीक का. सो यू हैव टू गो थ्रू दैट वीडियो जिसके अंदर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर रखा है. In that you will learn about this structures. Okay, so there are seminiferous tubules. Seminiferous tubule के वॉल के ऊपर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं. अगर वो सिंगुलर होगा तो वी विल कॉल इट एज स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, गोनिया मतलब दे आर प्लूरल, दे आर मोर देन वन इन द नंबर. और गोनिया लिखा हुआ है, सो इट मीन्स दे आर सिंगुलर. तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है इनिशियली वो 2n होता है. मीन्स दे आर हैविंग द 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और वी कैन से डिप्लॉयड क्रोमोसोम, और वी कैन से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. स्पर्मेटोगोनियम के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फॉर्मेशन? होते हैं उसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और वी कैन से इट इज़ अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर, और वी कैन से ऑन इट्स वॉल देयर विल बी स्पर्मेटोगोनिया or spermatogonium present, which will be having the number of chromosome that is 12. Now they will undergo mitotic division. Mitotic division मतलब इसके अंदर कोई रिडक्शन होने वाला नहीं है, वो खुद को डिवाइड करता जाएगा. एंड द माइटोटिक डिवीजन का मेन इंटेंशन क्या होता है? टू इंक्रीज इन नंबर, बिकॉज स्पर्मेटोगोनिया हो सकता है एक या दो ही होगा. अब एक स्पर्मेटोगोनिया तो सारा का सारा स्पर्म बना नहीं सकता, या it cannot do all its functions. So what has to the spermatogonium is going to divide itself through the mitotic division. वो अपना mitotic division करेगा. mitotic division मतलब the number of chromosomes in the cell, in the daughter cell and in the parent cell will remain as it is. ठीक है, रिडक्शन नहीं होगा. तो mitotic division करेगा कौन? spermatogonium, or we can say spermatogonia, and they are going to increase its number. What it is going to do? It is going to increase its number. मतलब एक स्पर्मेटोगोनियम था, उसने माइटोटिक डिवीजन किया, 2 बनाया, 2 ने वापस माइटोटिक डिवीजन किया, 2 से कितने बने? 4 बने, 4 से कितने बने? इससे भी 2, इससे भी 2. इस तरीके से पूरा का पूरा जो माइटोटिक डिवीजन है वो चलता रहेगा. एंड एट द एंड व्हाट विल हैपन? देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर. ओके, और इनका जो स्पर्मेटोगोनिया का जो लास्ट सेल भी होगा ना डिवीजन के बाद, दैट विल ऑल्सो बी अ 2n. क्रोमोसोम कितना होगा उसके अंदर? 2n. और वी कैन से ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्रोमोसोम्स कितने होंगे उसके अंदर? 46. ओके, अप टू हियर एवरीथिंग इज फाइन, राइट? पूरा प्रोसेस समझ में आया थोड़ा बहुत. अब स्पर्मेटोगोनियम दे हैव डिवाइडेड माइटोटिकली, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ. माइटोटिक डिवीजन के बाद कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मतलब ये जो स्पर्मेटोगोनिया बने, स्पर्मेटोगोनिया में से हम कुछ सेल को नाम दे देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. वो भी क्या होगा? 2n होगा. पता है हमें कि स्पर्मेटोगोनियम क्या था? 2n था. अभी वो प्राइमरी हो, सेम टू सेम वही वाला सेल तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह वर्क कर रहा है. सो दैट विल ऑल्सो अ 2n. नाउ व्हाट विल हैपन? द मियोटिक डिवीजन, और वी कैन से मियोसिस विल अकर. क्या हो जाएगा? that primary spermatocyte, okay, primary spermatocyte, now it is going to undergo meiotic division, और meiosis हम बोल सकते हैं. meiosis करेगा. meiosis करने के बाद it is going to prepare the secondary spermatocyte. ठीक है, फर्स्ट ये कौन सा था? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. हमने पढ़ा है ना कि मियोसिस के अंदर 2 टाइप के डिवीजन होते हैं. पहला फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, देन सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है. तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितनी थी? इसका क्रोमोसोम कंटेंट कितना? 2n. उसने फर्स्ट मियोसिस किया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, एंड
द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज गोइंग टू फॉर्म, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोमल कंटेंट कितना होगा, n. ओके, हैप्पी, हेलो, हाय, हाउ आर यू ऑल? ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा याद रखना, इट कैन कम इन योर एग्जाम दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज having the chromosomal content of 2n, while it will undergo the meiotic division and it will going to form the secondary spermatocyte. But secondary spermatocyte में chromosomal content कितना हो गया, half, that is n. ओके, क्या बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया. ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से क्या करेगा, इट विल अंडरगो द meiotic division, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड meiosis. ठीक है, आई एम कम्प्लीटली फाइन, कैफली, हाउ आर यू? इट विल अंडरगो meiosis, सेकेंड meiosis. ठीक है, 2 meiosis होते हैं एक टाइम. तो सेकेंड meiosis करने के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड. व्हाट इट इज गोइंग टू फॉर्म, इट इज गोइंग टू फॉर्म दी स्पर्मेटिड्स. ठीक है, जो भी वो भी क्या होंगे, एन होंगे, बिकॉज वो एन से ही बन के आए. ठीक है, they are also going to be having the chromosome n. अब ये spermatid now they are going to form the spermatozoa. zoa means क्या होता है, sperm का दूसरा नाम क्या होता है, spermatozoa. Please my dear students remember this word, because it can come in the examination to make you confused that what is spermatozoa. Spermatozoa is actually the sperm itself. Okay, तो जोआ मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे भी वर्ड एट द एंड जोआ आ जाता है या जू आ जाता है, इट मीन्स दे कैन मूव और दे कैन चेंज देयर लोकेशन. ओके, तो स्पर्मेटोजोआ और वी कैन से स्पर्म बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स थोड़े से पहली बार सुन रहे हो, इसीलिए हो सकता है कि यू विल बी फीलिंग कि मैम ये तो सारे वर्ड कंफ्यूजिंग है. But if you will listen to the video again, okay, and if you will just go back and go through this part again, so it will be more clear. If it is not clear, again go back. मैं तो रिवाइंड कर ही रही हूँ वापस for you people, but then also try to do so. Thank you. Carefully. Spermiogenesis. Spermiogenesis मतलब क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना. ठीक है, that is the whole process of meiogenesis, from the process of spermatid to the spermatozoa, or we can say the formation of sperm is what the spermiogenesis. Okay, up to here everything is fine, right? Again I am repeating this slide because it is a very important slide which is showing us the how the sperm is getting formed in the male body. Okay, तो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया किस डिवीजन से बन के आए, माइटोटिक डिवीजन से. इट मीन्स वो बहुत सारे बन गए. अब स्पर्मेटोगोनिया में से आई एम फ्रॉम अली, आई एम फ्रॉम गुजरात. ओके, so spermatogonia they have been formed by the mitotic division. अब ये स्पर्मेटोगोनिया से कुछ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उनके कुछ सेल्स को हम बोल देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. साइट मतलब सेल. ठीक है, साइट मतलब सेल, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा विच विल बी हैविंग द क्रोमोसोम एज 2n. ठीक है, विथ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. Then they are going to undergo the process of first meiotic division. meiosis क्यों करना है, because actually sperms क्या होते हैं, they are the gametes. They are the gametes, and we have already learned that gametes are always haploid. Gametes are always haploid. ये क्या है, haploid है. तो because parent cell जो था वो 2n था, तो 2n से उसको n करना है, तो it has to undergo the process of meiosis itself. ठीक है, repeat human reproductive topic please. Khaif Ali, my dear child, it's not possible for me to repeat the female reproductive topic again. The thing is that
You can go through the video which is already available on this channel itself. मेरे ही playlist में जाके आप check करना. You will find the female reproductive part which I have explained you in the last week. For 5 days I was not available on this platform. Okay, but you can go through that video जिसके अंदर मैंने एक दिन मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था. नेक्स्ट डे आई एक्सप्लेन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू कैन गो थ्रू इट. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नहीं समझ में आता है, नो प्रॉब्लम. टुमारो अगेन आई एम गोइंग टू कम लाइव. ओवर देयर यू कैन आस्क मी दी डाउट्स. ओके, वट एवर डाउट्स यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी. और इफ देन ऑल्सो यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई टू डू समथिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, क्विक रिविजन प्लीज. क्या अभी तो मैं क्विक रिविजन नहीं ले सकती बच्चा, बिकॉज टुडे आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक. डोंट वरी, फॉर यू आई विल कीप वन सेशन इन विच आई विल बी रिवाइजिंग दी होल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल क्विकली. ओके, एक सेशन में आपके लिए ज़रूर रखूँगी. ओके, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विथ मी. Okay, on this Unacademy platform and also on the YouTube channel, so that you can come to know that when I'm coming live. Okay, so you have to stay connected with me. Like कर लो मेरा वीडियो, ठीक है. सब्सक्राइब कर लो ये वाला चैनल, so that you will have a notification. ठीक है ना. हम बात कर रहे थे कि स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो 2n होता है and that has to undergo the meiosis. फर्स्ट meiotic division करेगा, उससे क्या बनाएगा वो secondary that is going to form the secondary spermatocyte. Okay, वो secondary spermatocyte बनाएगा. Secondary spermatocyte will also be n. Okay, वो भी क्या होगा, n होगा. ठीक है, मतलब उसके पास कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे. It will be having the haploid number of chromosomes. Okay, wait a second. ठीक है ना. सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? सिलेबस तो भाई टाइम लगेगा, सिलेबस थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, तो हम थे ओके. फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन किया. सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद जो सेल बनते हैं उनका नाम होता है स्पर्मेटिड. तो फिर जैसे जैसे डिवीजन चेंज होता है, ओके, जैसे जैसे डिवीजन होता जाता है, नए नए सेल बनते जाते हैं. तो नए नए सेल के बाद जो नए नए सेल बनते हैं उनका जो नाम होता है वो भी बदलता जाएगा. ठीक है, तो स्पर्मेटिड. ठीक है, स्पर्मेटिड से नाउ इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ और वी कैन से द स्पर्म. ओके, दिस वाज ऑल द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन द मेल. ठीक है, दैट वॉज एक्चुअली दी होल प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन दी मेल. ये पूरी जो 3 लाइन है ना, वो 3 लाइन अगर आपको समझ में आ गई एंड इफ यू विल रिमेंबर दिस 3 लाइन्स, ओके, तो आई एम 110% श्योर कि आप इसका जो अगर आंसर आता है एग्जाम के अंदर तो यू विल राइट वेल इजीली. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ये 3 जो लाइन है जिसके अंदर मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड ट्राई टू लर्न इट. कितना टाइम लगेगा भाई, कितना टाइम लगेगा वो तो कुछ फिक्स नहीं होगा. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, अब क्या होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजोआ बन गया और वी कैन से स्पर्म बन गया. ठीक है, स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, उसका जो हेड पोर्शन है इट इज गोइंग टू एम्बेड इटसेल्फ इनटू द सर्टोली सेल्स. ठीक है, अब सर्टोली सेल्स में उसको क्या मिलने वाला है वो हम बाद में देखते हैं. बट उसका जो हेड पोर्शन है इट इज नाउ गोइंग टू एम्बेड और इट इज नाउ गोइंग टू इंसर्ट इटसेल्फ इट्स हेड इन दी सर्टोली cells. Now talking about the spermiation when the sperm release from the seminiferous tubule, क्योंकि ये सारा जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, seminiferous tubule के अंदर ये हो रहा है. ठीक है, seminiferous tubule में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है.
अब नाउ दी स्पर्म्स आर गेट रेडी विथ ऑल इट्स मैच्योरेशन, मैच्योर हो गए, ठीक है, बट मैच्योर हो गए मतलब नाउ दे आर रेडी, बट मैच्योर होने के बाद भी दे नीड समथिंग। अब वो जो उनको बाकी की सब चीज़ें चाहिए वो उनको किससे मिलेगी, एसेसरी ग्लैंड से जो आगे आती है, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स जो होती है, ग्लैंड्स होती है, नाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड समथिंग टू देम एंड आफ्टर दैट देन ओनली दे विल गेट मैच्योर, ओके। तो स्पर्मिएशन प्रोसेस इसको हम बोलते हैं व्हेन द स्पर्म इज गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ओके। Ali, I cannot say you the exact time that I will need to complete the syllabus, but yes, I will try my best कि आपका जो एग्जाम्स आ जाए उसके पहले I will try to complete it, okay. Process of spermatogenesis starts at the puberty। अब मैंने आपको बताया था कि puberty मतलब क्या होता है कि वो टीनेज वाला एज starts at the puberty or we can say the teenage, अरे यार तो सही है यार, ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, बिकॉज व्हेन दी चाइल्ड इज फ्रॉम 1 to 11 years, ओके, एट दैट मोमेंट द चाइल्ड इज नॉट मैच्योर इनफ, उसकी टेस्टिस भी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो स्पर्म बनाए, बट जैसे जैसे वो टीनेज में एंटर करेगा, वो प्यूबर्टी वाली एज में एंटर करेगा, नाउ इट्स his body is getting prepared to undergo the process of spermatogenesis, okay। तो spermatogenesis process हो जाएगा when it will start at the time of puberty due to increase in the, अब यहाँ पे क्या होता है, there is going to increase the hormone जिसको हम बोलते हैं GnRH, this is actually a hormone। hormone क्या होते हैं, they are the chemical messengers, they are the chemical messengers। तो ये messengers क्या करते हैं कि these chemical messengers are going to release in the blood, these hormones are going to release in the blood and now they are going to do some work in the body, okay। so GnRH का फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये क्या कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने वाला, और वी कैन से, ठीक है, कुछ जो हमारे बॉडी की जो गोनाड्स हैं, जो हम टेस्टिस या ओवरीज बोलते हैं, तो उनको एक्टिव करने वाला जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दैट इज गोइंग टू रिलीज व्हेन दी प्यूबर्टी एज कम्स फ्रॉम दी हाइपोथैलेमिक। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से ही रिलीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यही हॉर्मोन्स अगर रिलीज होंगे तभी आगे वाला प्रोसेस काम करेगा। सो दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। अगर ये रिलीज अच्छे से हो गए, पर्टिकुलर क्वांटिटी में हो गए, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी उतनी क्वांटिटी में हो गए, देन और ओनली देन दी प्रोसेस विल स्टार्ट। Is that clear? To here everything is fine, right? Gonadotropin releasing hormone, my dear students, you have to remember this full form, that is GnRH, gonadotropin releasing hormone, because it can also come in the exam, okay। तो अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, मैंने बताया आपको कि वही वो हमारा हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता है, इसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। Now this gonadotropin releasing hormone is now going to act on the anterior pituitary gland। ये भी हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है, हमारे सिर में होती है। तो anterior pituitary gland के ऊपर it is now going to work करने के बाद it is going to release the टू हॉर्मोन्स, ये स्टिमुलेट कर देगा ताकि दोनों हार्मोन जो है रिलीज हो जाए, दैट इज LH, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एंड FHS, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। डोंट फॉरगेट दिस फुल फॉर्म्स। ये क्या है एक्चुअली, गोनाडोट्रोपिन जो मैंने आपको बताया ना। तो दिस LH दैट इज ल्यूटेनाइजिंग hormone and FHS that is follicle stimulating hormone,
अब दिस LH इज गोइंग टू वर्क ऑन दी लैडिक सेल्स जो इस चीज़ के अंदर लोकेटेड थे, ठीक है। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, ओवर देयर वी हैव हर्ड दिस वर्ड दैट इज लैडिक सेल्स. So this luteinizing hormone is going to work on the Leydig cells, okay, and the FSH, that is follicle stimulating hormone, is going to work on the Sertoli cell. Okay, this follicle stimulating hormone is going to work on the Sertoli cells. इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए माय डियर कैफ अली. इस चैप्टर का हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है. ओके, दिस चैप्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज हर एक लाइन जो है ना इसकी वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इट कैन कम इन द एग्जाम इन द एनी फॉर्म. ओके, द चैप्टर होल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लोली ग्रेजुअली, ताकि आपको एक एक टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हैव वर्कड ऑन द लैडिक सेल्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैव वर्कड ऑन द Sertoli cells. Now what they are going to do? Luteinizing hormone is going to work on the Leydig cells, जैसे हमने देखा. और फिर क्या होता है, they will going to stimulate the secretion of androgen. Androgen क्या था, मेन हार्मोन था, ठीक है. तो इट इज तो ये जो Leydig cells है, Leydig cells are actually responsible for the secretion of the hormone, मेन हार्मोन, that is एंड्रोजन. ठीक है, एंड्रोजन को रिलीज करने में हेल्प करेगा और एंड्रोजन ही जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा. ठीक है, मतलब आप देख रहे हो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने रिलीज करवाया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने काम किया लेडिक सेल्स के ऊपर. ठीक है, और लेडिक सेल्स ने क्या सिक्रेट किया, एंड्रोजन सिक्रेट किया. और एंड्रोजन ही मेन हार्मोन है मेल्स के अंदर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्म. ओके, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, इट स्टिमुलेट सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस. तो स्पर्मियोजेनेसिस हमने क्या देखा था, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने वाला प्रोसेस है ना, फ्रॉम दी स्पर्मेटिड टू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनने वाला प्रोसेस को हमने क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस. तो सर्टोली सेल्स आर वर्किंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आया. हर एक टॉपिक, हर एक सेल, हर एक हार्मोन क्या क्या रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. यू हैव टू रिमेंबर इट मम्मी. ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज इट कैन कम इन द एग्जाम. Each and everything it can come in the exam in the any form. Okay. अब ये जो पूरा प्रोसेस जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, थियरी के फॉर्म में पढ़ा था. ओके, अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअल फिगर कैसे है. ओके, पूरा प्रोसेस कैसा है, क्या दिखता है, वो हम देखते हैं. थैंक यू कैफ अली. स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था स्पर्मेटोगोनियम. ओके, स्पर्मेटोगोनियम वाज 2n. उसने क्या किया था, माइटोटिक डिवीजन किया था और उसने इट हैज़ इंक्रीज इट्स नंबर. ठीक है, क्या हो गया था यहाँ पे, इंक्रीज इन नंबर हो गया था, इंक्रीज इन नंबर. ठीक है, इंक्रीज इन नंबर होने के बाद हमने क्या किया था कि वी हैव लुक्ड दैट सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम वर वर्किंग एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि क्या था, 2n था. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ इट इज गोइंग टू अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. ठीक है, फर्स्ट मियोसिस करेगा, उससे क्या बना देगा, 2n बना देगा. फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा और उससे क्या बना देगा, स्पर्मेटेड. मतलब एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड्स बन रहे हैं, 4, 1, 2, 3 and 4. ओके, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट इज ऑल्सो एक्चुअली द 2n. बट बाद में जो एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस का सेकेंड मियोटिक डिवीजन को हम एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. तो हमने जो एक चीज़ देख ली, थोड़ी सी गलत देख ली कि जो सेकेंड, हाँ, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना वो 2n होता है. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो 2n हमने देख ही लिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होता है, 2n होता है. सो यू हैव टू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. ओके, तो दिस इज एक्चुअली दी 2n. ठीक है, अब वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा और फिर इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस स्पर्मेटेड, जो कि क्या होता है, n होता है.
हमने देखा कि स्पर्मेटेड बन गए विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, सब ठीक है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के एंड में वी आर गोइंग टू हैव द 4 स्पर्मेटेड, मतलब एक स्पर्मेटोसाइट is going to form 4 spermatid, ठीक है। it is going to form 4 spermatids एंड 4 स्पर्मेटिड्स बनने के बाद उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जिसके अंदर हमने देखा था स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। और वो क्या बना देगा, स्पर्मेटोजोआ, और वी कैन से स्पर्म, यू कैन सी दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हैज बीन occurred. So this is whole the process of spermatogenesis that you, when the question comes in your examinations, so you have to explain each and every step which is taking place, and you have to show with the help of this diagram also that how the process of spermatogenesis is taking place, okay। समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से? Up to here I think there is no doubt. If you are having any doubt you can write in the comment box, I will clear it out. Till then हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म दिखता कैसा है, ठीक है। बिकॉज वी हैव लर्न दैट स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म बन गया। अब स्पर्म जो बना है, हाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो स्पर्म के अगर हम पार्ट्स देखें तो इट इज़ हैविंग दी 4 पार्ट्स, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है ना, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो दिस स्पर्म इज ऑल्सो हैविंग दी 4 मेन पार्ट्स, दैट इज हेड, नेक पोर्शन, मिडल पीस एंड द टेल पोर्शन, ओके। नाउ वी विल सी दैट व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, क्यों ये अलग अलग पीसेस के अंदर डिवाइडेड है, ओके। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पर्म लुक्स, ठीक है। ये ह्यूमन मेल्स का स्पर्म है। सो लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर। यू कैन सी दैट दिस इज द हेड पोर्शन, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन क्या है, हेड पोर्शन, ठीक है। नेक पोर्शन ये वाला हो जाएगा। मिडल पीस आप देख सकते हो कि बीच का जो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है आपको, यू विल सी लिटिल बिट थिक पोर्शन, दैट इज द मिडल पीस, ओके। मिडल पीस में क्या लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लिखा हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मिडल पीस इज एक्चुअली कंटेनिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पीछे से आता है मिडल पीस खत्म होते ही क्या हो जाता है, टेल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, और पीछे पीछे क्या होती है, टेल शीट, मतलब टेल की कवरिंग, ठीक है। पूरी की पूरी जो टेल होती है दैट इज ऑल्सो बीइंग कवर, और ये जो पूरा होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा कवर होता है। अब आप देख रहे हो हेड पोर्शन के अंदर द लेवल इज गिवन फॉर द न्यूक्लियस, मतलब हेड पोर्शन ये है जिसके अंदर मेल गैमेट, और वी कैन से एन इज ठीक है, यहीं पे है मेल एक्चुअल क्रोमोसोम्स, मेल जो डोनेट करेगा ना, दैट इज व्हाट ओवर प्रेजेंट ओवर हियर। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम आप देख रहे हो कि सबसे टिप पे, एकदम टिप लेवल पे प्रेजेंट है एक्रोसोम। क्या करता है वो अभी हम देखते हैं, व्हाट वाज इट्स रोल, व्हाई द एक्रोसोम इज प्रेजेंट एट द टिप ओनली, ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट मिड पीस है, या जो मिडल पीस है दैट इज कंटेनिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हेन इट कम्स इन द एग्जामिनेशंस की मिडल पीस इज कंटेनिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और जो एक्रोसोम होता है वो हेड के टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीच में ये सेंट्रॉइड प्रेजेंट है, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो हेड, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द हेड। So head, it contains the haploid nucleus. Yes, we all know that it is having only the single pair of chromosome, or we can say because it is a gamete, that's why its number should be n, ठीक है। एक्रोसोम क्या करता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, देखा आपने, अभी देखा था ना कि ये स्पर्म का हेड पोर्शन था, उसके अंदर ये छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस था, ठीक है। दिस वाज द न्यूक्लियस एंड दिस वाज द एक्रोसोम। So it is a cap-like structure, has enzymes which help in the fertilization. तो एक्रोसोम के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे फॉर दिस स्पर्म, क्योंकि स्पर्म एक्चुअली व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, इट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉइटस, ओके।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ coitus it is going to enter into the female body, और फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद टू get into process of fusion with the egg cell, ठीक है, it has to undergo many hurdles. तो कुछ हर्डल्स को पास करने के लिए इट नीड्स एक्रोसोम, तो ये एक्रोसोम जो है वो स्पर्म को कुछ हर्डल्स पास करने में हेल्प करेगा. सो इट इज कंटेनिंग द एंजाइम्स which are going to help the sperm to fuse or to do the process of fertilization. What happened carefully? How can I change the topic, my dear child? टॉपिक कैसे चेंज कर दूँ, बीच में से कैसे छोड़ दूँ, पढ़ाई कौन करवाएगा फिर? We have to learn each and every topic very, deeply, right? I cannot change the topic right now. ओके, ठीक है. मिडल पीस, तो मिडल पीस हैज माइटोकॉन्ड्रिया. हमने देखा था कि मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था विच प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द टेल मूवमेंट. क्योंकि जो टेल आपने देखा ना पीछे, वही टेल जो है, क्योंकि टेल काम क्या करती है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट. ओके, तो टेल नीड्स अ कंप्लीट सप्लाई ऑफ एनर्जी. टेल के पास एनर्जी नहीं होगा तो उसको मूव कैसे करेगा? ओके, सो टेल नीड्स अ कंप्लीट सप्लाई ऑफ एनर्जी. तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने वाला काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. वी ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो यहाँ पे जो स्पर्म है ना, वो एक्चुअली पूरा एक सेल ही है. तो इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द टेल सो दैट द स्पर्म कैन मूव द लॉन्ग डिस्टेंस वेरी सक्सेसफुली. ओके, so middle piece has mitochondria which provides the energy for the tail movement, because tail needs a movement. tail का movement बंद हो जाएगा तो how the sperm is going to travel. okay, so tail needs a complete supply of energy, और उसको एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया. लोकेटेड कहाँ है? मिडल पीस में. एम याद रखना, मिडल पीस एम और माइटोकॉन्ड्रिया एम. ओके, सो इट विल बी वेरी इजी. फॉर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में से स्पर्म, जब हमने देखा था ना कि वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में से बनते हैं. ओके, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर उनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में से द स्पर्म्स आर नाउ गोइंग टू रिलीज. ओके, रिलीज हो गए. फिर उसके बाद रिलीज होने के बाद हमने देखा था बहुत बड़ा उसको पाथ जो था वो ट्रैवल करना था, और जब वो पाथ ट्रैवल कर रहा था तो उसके अंदर उसको काफ़ी सारे ग्लैंड के या ऐसे सारे डक्ट्स के कॉन्टेक्ट में आ रहा था. ओके, ईच एंड एवरी जो हमने ग्लैंड पढ़ा था, डक्ट पढ़ा था, इट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो स्पर्म इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस आएगा बीच में. ठीक है, एपिडिडाइमिस अपना कुछ सिक्रेशन प्रोवाइड करेगा, कुछ वास डेफरेंस अपना सिक्रेशन प्रोवाइड करेगा. सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट. तो ये सारे जो हमने डक्ट्स पढ़े, ओके, या ऐसे सारे हमने ग्लैंड्स पढ़े. So these are also going to contribute some of the secretions of themselves to the sperm so that it can able to move very easily and it can remain suspended for the long period of time, are essential for the maturation and motility of sperm. Okay, so semen जो हम बोलते हैं, actually जो मेल के अंदर हम semen बोल रहे हैं, actually over there we are talking about the sperm with the seminal plasma. seminal plasma मतलब जो liquid thicky liquid होता है, right? So seminal plasma किसने provide किया है? इन सब ने. seminal vesicle, prostate, vas deferens, epididymis, these all have provided the seminal plasma. We can say the liquid along with the sperm, it forms the semen in the man. Okay, the function of all is maintained by the androgen hormone which is the male hormone. हम क्या बोलते हैं? मेल हार्मोन बोलते हैं. जो हमको ये एंड्रोजन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ मेल्स में मिलता है. ओके, सो दिस एंड्रोजन हार्मोन इज गोइंग टू look at each and every one's function and it is going to maintain each and every one's function. हर एक के काम को वो मेंटेन करने वाला है और हर एक के काम को it is going to keep it in the control so that each and every stage of from the formation of sperm to the release of sperm, ठीक है, it is going to take place very easily. Okay, so androgen is the male hormone. Fine. चलो, एसेसरी ऑर्गन्स दैट इज फीमेल प्रोडक्शन. तो हमने देखा था कि भाई जो थिक लिक्विड जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से. तो सेमिनल वेसिकल जो थे दे वर प्रोड्यूसिंग द 60% ऑफ टोटल इजैक्यूएट वॉल्यूम. इजैक्यूएट वॉल्यूम मतलब जितना भी एक बार में वॉल्यूम it is now going to release from the
testes, okay, yeah, when the process of coitus takes place, so कुछ amount of some amount of volume is going to release which is containing this sperm, okay. So 60% उसका जो volume होता है it is being released or it is being secreted by the seminal vesicle. फिर prostate जो होता है it is producing around 20% of ejaculate, okay. Bulbourethral gland हमने देखा था it is releasing around 10% of ejaculate, and collectively these all accessory glands now it is going to form the 90% of the semen volume. मतलब टोटल 100% में से 90% क्या होता है सीमेन होता है, एंड ओनली 10% क्या होते हैं स्पर्म होते हैं, 10% क्या होते हैं स्पर्म्स होते हैं. मतलब बिकॉज स्पर्म्स आर सो वेरी वेरी सेंसिटिव, ओके. तो वो इतने सेंसिटिव है तो वो फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करे और फर्टिलाइजेशन करे तब तक ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि भाई उनकी जो वायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए. सो टू कीप देम वायबल फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम for their smooth movement also, there is a semen present which is around 90% of the total volume, ठीक है. 90% of volume semen होता है, 10% सिर्फ sperm होते हैं, so that it will be very easy for the sperm to get enter into the female body. It is very easy to pass all the hurdles and it can fuse with the egg cell, okay. That we will see later, fine. This was the structure that we have seen in the last part itself, that हमने देखा था कि वे टेस्टिस में से okay, this were the locules, okay, compartments हमने इसको बोला था. तो एपिडिडाइम मतलब यहाँ से टेस्टिस में से स्पर्म प्रोडक्शन होता है, they are getting released and they are going to enter into the epididymis. Epididymis से वो कहाँ करेगा, it is going to enter into the vas deferens. Then this is called the vas deferens. Vas deferens is now going to come into contact with the different accessory structures like seminal vesicle है, ठीक है. seminal vesicle अपना maximum Aarti, when did you come live online? I don't know. And have some sense to talk with the educators, okay. This is not the language which you should use with the educators, okay. तो हमने देखा था कि this as a vas deferens is going to come into contact with the hello. Hi Aarti, what the thing you have wrote and the message you have deleted? Something was wrong with you or it was by mistake? Okay, so sorry ma'am, it's okay, completely fine. But my dear students, as you are on the public completely social networking site पे हो, आप public पे हो, तो you should be aware when you are writing the comments, okay. Because you also know that what can happen, okay. So it's completely fine, there is nothing to say sorry, okay, completely fine, okay. So vas deferens जो था it is now going to come into contact with the different accessory ducts like seminal vesicle जिसने 60% of liquid semen produce कर रहा था. फिर prostate gland था, bulbourethral gland. So these are the small glands which are located in the path of the sperm so that it can have the liquid, and then after that it will ejaculate from the male body, okay. So this was all about the today's lecture. So we will have the quick review on this today's lecture and then we will end our today's topic, okay. So the main thing which we have learned today was this spermatogenesis. इसके अंदर हमने देखा था कि spermatogonia जो था, ठीक है, spermatogonia that was the 2n structure. What happened Aarti? There is nothing to delete the comments. It's completely fine my dear child. It happens. Mistake अपन से ही होती है, किसी से नहीं होती. We are the human beings. Mistake can occur with us. Okay, there is nothing to delete the message, but yes, I would suggest you that when you are writing the comments, so you should be very aware that what you are writing, okay. It's completely fine my dear child, ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया था, जो स्पर्मेटोगोनिया that was a 2n structure. It undergo the process of mitosis. Mitosis करने के बाद it has formed the primary spermatocyte. Primary spermatocyte it is going to enter into the first meiotic division. It is going to form the secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte से
अगेन इट इज गोइंग टू अंडरगो मियोटिक डिवीजन और उससे क्या बनाएगा, स्पर्मेटेड बना देगा, ठीक है। और स्पर्मेटेड इट इज गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस एंड विल फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ और वी कैन सी द स्पर्म्स. So this was the whole thing which we have actually learned about in the today's lecture, and then we have learned about the structure of the sperm. तो ये हमने देखा था कि उसका हेड पोर्शन था, मिडल पीस था और टेल पोर्शन था, एंड देयर वाज अ नेक आल्सो. द नेक इज कंटेनिंग द सेंट्रोइड. ओके, हेड पोर्शन के अंदर एक्चुअली जो न्यूक्लियस था दैट वाज एक्चुअली द कंटेनिंग द मेल गैमेट. ओके, और टिप पोर्शन पे था एक्रोसोम जो दैट वाज हेल्पिंग आउट द स्पर्म टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इजीली. ओके, मिडल पीस के अंदर हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया था दैट वाज प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द टेल सो दैट इट कैन मूव इजीली. ओके, बिकॉज इट हैज टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, so it needs a continuous supply of energy, तो वो दे रहा था उसको माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, so that was all thing which we have learned in the today's lecture. That was the overview. Okay, fine. So this we have seen, so thank you my dear students. If you are having some doubts and queries, you can ask me right now. I'm giving you 2 minutes to ask your doubts and queries, or then I will end up the session. Okay, तब तक के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोल देती हूँ फॉर अटेंडिंग माई टूडेज लेक्चर. आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो. प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, so that the students can come to know about the thing which I have make you understand. Okay, please like the channel also and subscribe to the channel, this channel. As soon as I will come live, you can have the notification. Okay, you can also follow me on the Unacademy app. Unacademy की ऐप को डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल के अंदर फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड फाइंड मी एज अ दिव्या गुप्ता. ओके, माय नेम इज दिव्या गुप्ता. फाइंड मी ओवर देयर एंड यू जस्ट फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है, ताकि जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स के लिए मैं टाइम आउट करूँगी यू कैन कम टू नो, सो यू कैन लर्न फ्रॉम मी ओवर देयर ऑल्सो. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज DD007 to have a 10% discount today itself. So my dear students, अभी के अभी जाओ और फटाफट से Unacademy ऐप को डाउनलोड करो. Find the what are the subscriptions which are available for you and use the referral code, ठीक है, referral code that is DG007 and have a 10% discount. Till then, I hope everything is fine. You have liked my video. Thank you so much students for joining me in today's session. Thank you. Bye. Have a great day ahead. Don't go out.